Hello everyone, how are you? Today we are going to start the lecture number 3, petroleum. Petroleum is also called black gold. You know why? Why petroleum is called black gold? Gold is very precious metal, very expensive metal. But petroleum is not a gold. Petroleum is a black colored viscous high density liquid. Petroleum is a black colored viscous liquid and it is too expensive. That's why it is called black gold. It is black in color, but it is not gold. It is expensive like that of gold. That's why it is called black gold. The petroleum is called black gold, and the economy of a country that is also dependent on the petroleum. How much petroleum they extract from their oil refineries. So in this chapter, in this topic, we are going to talk about the petroleum. So petroleum, second thing is there, very important. Petroleum and petrol, there are two different terms, not a single term. Petroleum and petrol, sometimes we use a single word, petrol and petroleum both are same, but no, petroleum and petrol is different. What is the difference? Petroleum is a crude oil that is obtained from the oil well. It is petroleum and it is mixture of various hydrocarbons. So another question arises here, what is hydrocarbon? Hydrocarbon are the compound that contain hydrogen and carbon. So the compound which is made up of hydrogen and carbon, that is called hydrocarbon. So petroleum is a मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन. अलग अलग हाइड्रोकार्बन का इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है, और उन्हीं मिक्सचर में से एक आपका पेट्रोल है, आपका डीजल है, आपका केरोसिन है, आपका पैराफिन है, आपका वैक्स है, बहुत सारे. ये सारे के सारे पेट्रोलियम के ही क्या हैं, प्रोडक्ट है. तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. पेट्रोलियम डिफरेंट है और पेट्रोल डिफरेंट है. क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड. Petrol is used for the light motor vehicle like your car, your motorcycle, but diesel is used in the heavy motor vehicle. Clear? Petroleum is used as a fuel and act as a lifeline of the modern civilization. Modern civilization की lifeline, and it is black, dark colored, viscous, strong smelling liquid. The smell is strong. That's why it is called black gold. Already we have discussed about the black gold of the petroleum. Now, second section, how petroleum is formed. In the previous section, lecture number 1, we discussed or study about how coal was formed. Same thing, how petroleum was formed. Aquatic organism. Question arises here, what is aquatic organism? The organism that live in water bodies like your sea. That type of organism is called aquatic organism. Can you give me the definition of terrestrial organism? Try to write down in the comment box or doubt section. Write down what is terrestrial organism. Tell me. We will discuss in the next part. So what is aquatic organism? Aquatic organism, the organism that lives in the water, that is called aquatic organism. Now aquatic organism that live in the sea, they will die. After the death of that aquatic organism, the body of that organism settle down on the sea bed. Suppose ये आपका sea है और ये इसका bed है. Bed means bottom for surface. यहाँ पे आकर के सारे इकट्ठा हो गए. Clear? After some time, the body of that organism is covered with the sand and clay. Due to high temperature and high pressure, the body of an organism
कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होगी। सेम प्रोसेस अपन ने पढ़ा था कोल के अंदर। कोल के अंदर क्या था, प्लांट्स लिए थे अपन ने, है ना, और इसके अंदर क्या लिए हैं अपन ने, एनिमल्स लिए हैं। वो लैंड के ऊपर था कोल जो बना था, ये क्या है वाटर बॉडीज के अंदर है। इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम प्रोसेस है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। क्लियर है। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेट्रोलियम के बारे में जो है वो यही है कि पेट्रोलियम को अपन एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे और उसकी रिफाइनिंग कैसे करेंगे। कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद अपन रिफाइनिंग वाले टॉपिक पे आते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम मीन्स हाउ कुड यू एक्सट्रैक्ट द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, कहाँ कैसे निकालोगे। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ड्रिलिंग, अपन ड्रिल करेंगे थ्रू द अर्थ और इम्पेरिवियस रॉक, जो इम्पेरिवियस रॉक होती हैं, नॉन पोरस जो रॉक होती हैं, उसको अपन ड्रिल के थ्रू वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से अपन उसको ऑब्टेन करेंगे। कुछ फैक्ट हैं, वर्ल्ड में सबसे पहले ऑयल वेल कहाँ स्टार्ट हुआ था और इंडिया में कहाँ हुआ था। वर्ल्ड में पेनिसिल्वानिया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1859 के अंदर सबसे पहले अपने वेल बनाया था। वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल पेनिसिल्वानिया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1859 के अंदर। सेकंड था माकूम, माकूम कहाँ है, आसाम, 1861 फर्स्ट इन इंडिया, एंड इंडिया के अंदर फर्स्ट जो था वो माकूम आसाम 1867 के अंदर था। वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले था पेनिसिल्वानिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1859 के अंदर। इंडिया में और कौन कौन सी लोकेशंस हैं, आसाम, गुजरात, बॉम्बे हाई, बेसिन्स ऑफ द नर्मदा एंड कावेरी रिवर, वहाँ पे ऑयल वेल्स एस्टेब्लिश्ड है। अब बात करते हैं अपन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करोगे। रिफाइनिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अपन ने पढ़ा था कि पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। सो वेरियस जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको आप सेपरेट कैसे करोगे, अलग अलग कैसे करोगे। पेट्रोलियम से पेट्रोल कैसे निकालोगे, डीजल कैसे निकालोगे, पैराफिन, वैक्स, बिटुमेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, हाउ सेपरेट, आप सेपरेट कैसे करोगे। तो वो प्रोसेस अपन क्या देखेंगे, रिफाइनिंग के अंदर देखेंगे। ठीक है। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड वेरियस हाइड्रोकार्बन हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। आपने 7th क्लास के अंदर हीट वाले चैप्टर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था कि जिस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉइल करना स्टार्ट कर देता है वो उस सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर है। एज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, सपोज अपन स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोकार्बन का नंबर है। इसका जो नंबर है वो उसका 1 है, इसके अंदर क्या है 6 है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, उनका जो बीपी है, अपन वर्ड यूज़ करेंगे बार बार बीपी बॉइलिंग पॉइंट की जगह, तो ध्यान रखें। तो इनका जो बीपी है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। As number of hydrocarbon increases, BP also increases. This property is used to separate different components of the petroleum. पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको अपन वर्ड यूज़ करें इनके लिए फ्रैक्शन, उन फ्रैक्शन को सेपरेट करने के लिए यही प्रिंसिपल अपन यूज़ करते हैं। कौन सा प्रिंसिपल, कि सब हाइड्रोकार्बन्स जो उसके अंदर पेट्रोलियम में मिक्सचर है, सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हर एक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होंगे, बॉइल्ड होंगे, वेपर्स बनेंगे उसकी। इसी प्रॉपर्टी को, इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके अपन उसको सेपरेट करते हैं। तो वो जो फ्रैक्शंस होते हैं, उन जो कंपोनेंट है उसको अपन फ्रैक्शन नाम दे रहे हैं। जो प्रोसेस है वो अपनी क्या हो जाएगी, रिफाइनिंग हो जाएगी। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन टावर या जो कॉलम है वो यूज़ करेंगे। और ऐसा प्लेस जहाँ पे अपन ये काम करते हैं उसको अपन पेट्रोलियम रिफाइनरी के नाम से जानते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आप ध्यान रखें। जो कंपोनेंट हैं उसको अपन फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। प्रोसेस होगी और आपकी रिफाइनिंग होगी। प्लेस होगा वो पेट्रोलियम रिफाइनरी होगा। और जो डिवाइस अपन यूज़ कर रहे हैं उसको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर या कॉलम के नाम से जानते हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है वो कैसे काम करती है। एक छोटा फ्लो चार्ट बनाने की मैंने कोशिश की है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझना है। इससे पहले मैं आपको उस डायग्राम के पास लेके चलता हूँ जो एक्चुअल में होता है। देखिए, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको।
अपन क्या करेंगे, ये अपने पास पेट्रोलियम जो है, दिख रहा है पेट्रोलियम, ठीक है, इधर से ये पेट्रोलियम आ रहा है, एक फर्नेंस होती है जिसके अंदर नियर अबाउट टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है। 400 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसके अंदर जितने भी जो सब्सटेंसेस जो मिक्सचर होंगे वो इसके थ्रू अपन पास आउट करवाएंगे तो उनकी सबकी क्या बन जाएगी जी, वेपर बन जाएगी। फिर उसको अपन यहाँ से करेंगे। अब क्या होगा, सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे पहले वो कंडेंस होगा, ध्यान से सुनना, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले कंडेंस होगा, और सबसे बॉटम वाले सरफेस के अंदर आपके पास रेजिड्यू आ जाएंगे, इधर से अपन उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जिनका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा वो निकलेंगे, यानी उसके बाद निकलेंगे आपके हेवी ऑयल्स के बाद में बाकी जो वेपर से ऊपर जाती जाएगी, वो जिनका टेम्परेचर नियर अबाउट इससे कम आएगा, है ना, वो आपका लाइट ऑयल आएगा। लाइट ऑयल यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, फर्दर वेपर्स ऊपर जाएंगी, फर्दर टेम्परेचर कम होगा, आपका केरोसिन सेपरेट हो जाएगा, फर्दर अपन जाएंगे गैसोलीन और नेप्था सेपरेट हो जाएंगे, और फिर लास्ट में जो जिसमें लगभग 1 से लेकर 3 तक की हाइड्रोकार्बन्स के नंबर होते हैं वो आपके पेट्रोलियम गैसेज आती हैं, है ना, आपकी नेचुरल गैसेज आती हैं, वो ऊपर टावर के ऊपर से निकल जाती हैं, और इस पूरे डायग्राम को अपन फ्रैक्शनिंग टावर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। अब हम उस फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये डायग्राम बना सकते हैं, उसके बाद में अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस डायग्राम को बना करके आप इसको कंटिन्यू करें। यस, ये फ्लो चार्ट आ रहा। फ्लो चार्ट में अपन क्या देख रहे हैं, क्रूड ऑयल जिसको अपन पेट्रोलियम कह रहे हैं, हीटेड एट 400 डिग्री इन फर्नेंस। उस फर्नेंस अभी अपन ने देखा था, उसमें अपन उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं। वेपर्स आर पास इनटू फ्रैक्शनिंग टावर, उस पूरे टावर के अंदर क्या होंगी, वेपर्स बनेगी। हमारे अलग अलग पॉइंट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही चीज़ आपको उस डायग्राम के अंदर देखने को मिलेगी। ये जो चीज़ जो मैंने लिखी है, जो वर्ड्स यूज किए, वो फर्स्ट नंबर का मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 नंबर है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, टॉप पे जाएगा। तो बॉटम पे अपने पास जो रेजिड्यू जो बचे थे, है ना, रेजिड्यू जो बचे थे, वहाँ पे नियर अबाउट जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 350 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। यानी 350 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट जिनका बॉइलिंग पॉइंट था वो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और वहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। उनमें क्या क्या आएंगे, आपके ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स आएंगे, पैराफिन इनवैक्स आएंगी और बिटुमिन्स आएंगे। ये सारी चीज़ क्या होगी, रेजिड्यू के अंदर होगी, जो सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद आएंगे आपके हेवी ऑयल, 300 टू 350 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट होंगे, जिसमें आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड में आपके लाइट ऑयल्स, ये अब अपन कहाँ की तरफ चल रहे हैं, टॉप की तरफ चल रहे हैं। लाइट ऑयल में 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस आएंगे। लाइट ऑयल में आपका क्या जाएगा, डीजल आ जाएगा। केरोसिन 150 टू 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और गैसोलीन और नेप्था है, उसके अंदर आपका पेट्रोल आएगा। ये चीज़ आप ज़रूर रखें कि गैसोलीन और नेप्था है, उसके अंदर पेट्रोल आएगा, जिसमें 40 टू 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का रहेगा उनका। और पेट्रोलियम गैसेज जो होती हैं वो बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से ही कम होता है, जिसमें आपकी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज आती हैं। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू अपन समझ सकते हैं कि अलग अलग जो फ्रैक्शन जो बने हुए हैं उसके अंदर ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो कॉलम के थ्रू क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जो फ्रैक्शन जो टावर है आपका, वो किसके बेस के ऊपर काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल यही है कि पेट्रोलियम में जितने भी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। और इस बॉइलिंग पॉइंट के प्रिंसिपल पे ही क्या करते हैं अपन, उसको सबको सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर है। ये सारी चीज़ें अपन ने इस चैप्टर के अंदर देखी। ये चैप्टर का ये जो सेक्शन है पेट्रोलियम वाला वो कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, समझें। इसके साथ मैं PDF भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वो भी आप साथ में लिख करके रखें और अच्छे से समझ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय